ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ममता बनर्जी का विरोध हुआ है। ममता जब भाषण दे रही थी, उसी बीच लंदन में लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े लोगों ने आरजी कर की घटना को लेकर विरोध शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा और करप्शन को लेकर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को राजनीति का मंच नहीं बनाइए। आपको दिखाते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आखिरकार क्या हुआ। I'm so happy that you welcome me. Thank you so much. You want to kill Abhaya and give it to justice? I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. I will listen carefully. You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state. Not here. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more stable to fight against the communal people. This is you. This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. Just have a look. Have a look. This is not a drama platform. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for unity. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विरोध होने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए धब्बा है। बंगाली हिंदू चाहते हैं कि बंगाल की संस्कृति को बर्बाद करने वाली सीएम हटाई जाए। आरजी कर केस, महिलाओं के खिलाफ अपराध और करप्शन को लेकर ममता बनर्जी का ऑक्सफोर्ड में भारी विरोध किया गया। पहले बोला था ममता बनर्जी के बारे में कि आप जा रहे हैं विदेश में जाइए, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों का हो रहा है और यहाँ नाबालिग का विवाह हो रहा है सबसे ज्यादा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। वहाँ आप तैयार होकर जाइए। तो प्रश्न आया तो बिगड़ गई, उनके पास उत्तर नहीं है। यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, आप बाधा दोगे तो पुलिस डंडा मारेगा। लेकिन विदेश में जब जाते हैं ना, तो लोग जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल को सब दुनिया के लोग जानते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग विदेश में बैठे हुए हैं। यहाँ विवेकानंद, चैतन्य, रामकृष्ण, राममोहन, श्यामा प्रसाद, इनके लिए बंगाल को जाना जाता है। तो वहाँ इस प्रकार घटना होगा तो उत्तर देना पड़ेगा। आप बिगड़ने से क्या होगा। अब बात राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ सकता है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से लड़ चुकी है, जिसके सामने बीजेपी और आरएसएस एक जोक है, यानी कुछ भी नहीं। On one side, there is the RSS concept, dictatorship, hierarchy, suppression of lower castes, of weaker sections, suppression of women, disrespect to women. And on the other side, there is the Congress ideology, which gave us our freedom, which treats everybody equally, all castes equally, all religions equally, and aspires to make India a fair place, a harmonious place. You know the division that the BJP is causing. You can see that 2 or 3 business people are operating very much like the East India Company used to operate. They own everything. They own the media. They own the telecoms infrastructure. They get anything they want. If they want land, they get land. They want ports, they get ports. They want defense contracts, they get defense contracts. This is not the India that the Congress Party intended. Congress Party intended to build an India where people can all aspire to greatness. Everybody can dream. And so this is what the fight is. The fight is a difficult fight. You know, but we have fought much more difficult fights before. We have fought, if you remember, the British Empire, and the RSS and BJP are a joke in front of the British Empire. वहीं लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन बिल पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा, भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों से सख्ती से निपटेंगे। ममता सरकार पर घुसपैठियों की हितैषी होने का बड़ा आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल में कमल खिलने के बाद सब घुसपैठ बंद हो जाएगी। मान्यवर, एक 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर
ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये झूठ है, हम तो जानते हैं। आधार तो राज्य सरकार नहीं बनाता। जो बॉर्डर फेंसिंग बना वो पश्चिम बंगाल सरकार का दिया हुआ जमीन में भी बना। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब की कब्र पर जारी घमासान के बीच एक सांसद का ऐसा बयान आया है जिस पर विवाद छिड़ सकता है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने उद्धव ठाकरे की तुलना की है। जिस तरह औरंगजेब ने अपने पिताजी को तकलीफ दी, अपने भाइयों को तकलीफ दी, उसी तरह उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी को अंतिम क्षण में बहुत तकलीफ दी। असली प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाइयों का कांटा निकाला और ये वाद कोर्ट तक चला गया। अरे ये तो छोड़ो, बाला साहब जी ने आखिरी क्षण तक कांग्रेसी विचारों से दुश्मनी की थी, लेकिन बाला साहब जाने के बाद सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। उनके मरने के बाद भी उन्होंने बाला साहब जी के आत्मा को यातना दी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे, आप आधुनिक युग के औरंगजेब हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।